चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं, भाग्य इठलाऊं। मुझे तोड़ देना ए वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये इमॉर्टल लाइन से मैं मेजर जनरल पचौरी रिटायर्ड आज का सेना का एपिसोड शुरू कर रहा हूं। And I have quoted these lines, though I'm afraid they may not be exact as per the great poet's work, to essentially bring to your notice that seldom ever have better or more stirring lines been spoken about a soldier. I am sure you have got the essence. तो पिछले एपिसोड में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, and that was, where is the Rajputana Rifle Center located? I'm very happy that a number of you have replied correctly. Congratulations. The Rajputana Rifle Center is located in Delhi Cant, New Delhi. So today I'm going to talk about a very important and a very interesting facet of the Indian Army, and that is the arms and services. मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा बहुत संक्षिप्त में, what are the components of the Indian Army? क्या है इंडियन आर्मी, कौन लोग होते हैं इसमें, क्या अलग अलग भाग हैं इंडियन आर्मी के, क्या काम करते हैं ये सारे लोग. एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑफन फाउंड पीपल, सिविलियन फ्रेंड्स, डू नॉट नो मच अबाउट. तो मैं आपसे ये शुरू करूंगा सबसे पहले कि इंडियन आर्मी में या किसी भी और आर्मी में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. ये होते हैं आर्म्स, जो कि कॉम्बैट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और सर्विसेज जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड वेयरविथॉल प्रोवाइड करते हैं. इन टुडेज एपिसोड आई शैल ओनली बी रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू द आर्म्स. So I will talk about, I'll quickly first run down on what are the arms and then very briefly tell you about each of these arms. तो arms होते हैं infantry, armored corps, mechanized infantry, artillery, engineers, the Corps of Signals, the Army Aviation Corps, and the Air Defense Corps. Now I would like to tell you here that within arms also there is a slight classification, and that is the combat arms or the fighting arms, which are, in a manner of speaking, directly involved in a one-to-one combat with the enemy. And these arms are the infantry, the armored corps, and the mechanized infantry. And also the other arms, which are known as the combat support arms, which are the artillery, engineers, signals, air defense, and aviation corps. अब मैं आपको briefly एक एक के बारे में बताना चाहूँगा. Infantry. Infantry, also known as the queen of battle, is the largest component of the Indian Army. Now infantry is made up of several regiments, जिनके बारे में मैं किसी आगे के एपिसोड में जरूर आपसे बात करूंगा. And infantry is for your understanding the पैदल सेना or the foot soldier. Some of you may well ask, in today's technologically advanced era, what is the significance of infantry when we have drones, robotics है, artificial intelligence है. So the infantry's basic role is to hold ground and to capture ground. And infantry will always be there because these two important functions of war will always be there regardless of technological advancement. Next is the armored corps. Now the armored corps is that component of the army, that arm which has the tanks. बहुत simply मैं आपको बता रहा हूँ, और इनकी origin है basically cavalry units से, जो कि horsed units होते थे. And the tanks go into battle either on their own or in concert with other arms, and therefore it is a very important arm. The mechanized infantry, as the name suggests, this is a little bit of both infantry and armored. ये वो component होता है जो infantry है, लेकिन they move in armored personal carriers
up to a certain point where after the infantry dismounts and fights like normal infantry. और ये जो जिसमें ये लोग जाते हैं उन vehicles, they are all armed and they have armor protection also. Next is the artillery. Now artillery is the big guns, the Bofors for example, जिसके बारे में आप जानते हैं. और ये वो weapons होते हैं जो कि combat arms को उनके close combat में सपोर्ट करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्म, ऑल्सो रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ द बैटल. और इनकी जो गन्स होती हैं दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ 35 किलोमीटर्स और उससे भी ज़्यादा के रेंजेस होते हैं. और इनका फायर डायरेक्शन वगैरह होता है, आगे कभी हो सकेगा तो मैं आपको बताऊंगा. इंजीनियर्स इज दैट आर्म विच हेल्प्स आवर ओन फोर्सेस इन देयर मोबिलिटी, जिनको कि उनके मूवमेंट में वो मदद करते हैं, जैसे कि एनिमी की माइंस को ब्रीच करना, एनिमी के ऑब्स्टिकल्स हटाना, ब्रिजेस ले करना पानी वाले ऑब्स्टिकल्स के ऊपर और दूसरों के ऊपर, डिमोलिशंस करना. और इसी तरीके से इंजीनियर्स इन व्हेन वी आर इन डिफेंस they impede the enemy's mobility by laying mines, obstacles, demolitions, etc. Next we have the Corps of Signals, a very important component. Basically they have to do with communications. आज के इस युग में there is a whole gamut of electronic warfare, cyber warfare, C3I, command control, communications and intelligence. तो ये सारे पहलू signals देखते हैं and they have come a long way from the day of the dispatch rider, जो incidentally आज भी होते हैं. The air defense, as the name suggests, air defense वो component है जो कि ground troops की, ground पे deployed combat forces की एयर से सुरक्षा प्रदान करता है, हवाई हमले से. We have the aviation corps. This is that corps which again has its origin in artillery, जहाँ के पहले एक एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, एयर ओपी करके एक आर्म होता था. और ये हेलीकॉप्टर्स जो हमारे हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि फॉर मूवमेंट ऑफ senior commanders, quick movement in the field, for direction of artillery fire, for casualty evacuation, for movement of important ammunition and supplies to forward areas, etc. तो ये थे हमारे कुछ एक आर्म्स. जैसा मैंने कहा सर्विसेज के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा. ना एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपसे इस वक्त आपसे शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहले है कि जो हमारी जो इंडियन आर्मी है इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई और आगे मैं सर्विसेज का बताऊंगा, ये सब मिल करके दे फॉर्म दैट इंपॉर्टेंट एंड ग्लोरियस फाइटिंग मशीन नोन एज द इंडियन आर्मी. कोई भी इसमें ये नहीं कह सकता कि साहब मैं ज़्यादा ज़रूरी और ये कम ज़रूरी. वी आर ऑल अबाउट टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड वर्किंग टुगेदर. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट फॉर यू टू नो. और दूसरी आपकी जानकारी के लिए मैं एक दिलचस्प बात ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप कैसे जानेंगे अगर आपको कोई वर्दीधारी, इफ़ यू सी अ मैन, अ सोल्जर इन यूनिफॉर्म, कि वो किसका है, किस इनमें से किस आर्म या सर्विस का है. तो मैं आपको इसमें बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि पहले अगर हम इन्फेंट्री को देखें तो अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं. इन्फेंट्री का एनी ऑफिसर और एनी जवान विल ऑलवेज बी वेयरिंग द शोल्डर टाइटल्स ऑफ हिज रेजिमेंट, जैसे महार रेजिमेंट, राजपूत, कुमाऊं. आर्मर्ड का अगर होगा तो वो अपने यूनिट का शोल्डर टाइटल लगाएगा, जैसे सेंट्रल इंडिया हॉर्स, CIH कहते हैं, या सिंध हॉर्स. और जो बाकी होंगे जैसे आर्टिलरी का, एयर डिफेंस का, सिग्नल्स, इंजीनियर्स वगैरह का, वो अपने शोल्डर पे सिग्नल्स या एयर डिफेंस या इंजीनियर्स या आर्टिलरी उनके शोल्डर पे आपको लगा हुआ दिखेगा. इसके अलावा कैप्स अलग अलग किस्म की होती हैं, अलग कलर्स की होती हैं. कैप बैज होता है जो अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग होता है. बेल्ट बैज होता है जिससे आप समझ सकते हैं, और लैंडयार्ड इत्यादि. तो ये इन चीज़ों को मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा. आई डू नॉट विश टू कंफ्यूज यू. सो दिस वाज अबाउट द आर्म्स वेरी ब्रीफली. मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक आर्म अपने आप में डिजर्व्स वन और इवन मोर एपिसोड्स. एंड बिफोर आई साइन ऑफ, एज इज नाउ बिकम कस्टमरी, माई क्वेश्चन, प्लीज सी द योर कंप्यूटर, योर स्लाइड, योर स्क्रीन्स. ये कौन सा वेपन है? विच इज द वेपन विच हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन? I will meet you again with the next episode in 3 to 4 days time. Stay tuned, share with your friends. That's such a channel, non-commercial, with only the aim of spreading awareness of non-classified, simple matters about the army. I'm happy with your responses. Thank you so much. Stay safe.
टेक केयर, जय हिंद।